ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਹੇ ਗਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੂ ਸੈਡ। ए ऑप्शन है जी मन, बी क्रो, सी वॉटसन, डी है जी वुडवर्थ। ठीक है। की किया गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की विज्ञानिक खोज के नाल है। मॉडर्न साइकोलॉजी जिहड़ी की है साडी रिलेटेड हैगी आ किस नाल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर नाल। ते किसने गल कही है जी, ये कही है जी वॉटसन ने। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। The school may be regarded as the social invention to serve society for the specialized teaching of the young. This has been stated by ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਏ ਹੈ ਜੀ ਔਟਵੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਡੀਵੀ, ਸੀ ਹੈ ਕੋਲਬਰਗ ਜਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਮੈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਔਟਵੇ। ਔਟਵੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਟਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। Development means a series of progressive positive changes that occur in orderly and predictable pattern as the result of maturation and experience. This is stated by option देख लेने जी। A है जी स्टीवसन, B हरलोग, C पियाजे ते D है जी क्रो। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਰਲੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ that occur in the ordinary and predictable pattern as a result of maturation and the experience. Clear ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Learning is a change in a behavior through experience. Who said? A. Gates, B. Munn, C. Watson ਤੇ D ਹੈ ਜੀ ਵੁਡਵਰਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਗੇਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੌਣ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ A. ਵੋ ਐਂਡ ਨਾਰਮਨ, B. ਸਟਰਨਬਰਗ, सी है जी एटकिंसन एंड शफरीन एंड डी है जी वैगोस्की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है जी वो है जी ए इसका राइट है आंसर है कि प्राइमरी ते सैकेंडरी मैमरी किसने दी है वो है जी वो एंड नॉर्मन। क्लीयर जी। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन ब्रेल की वरतों पढ़न के उद्देश ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इन्हां विचों किहड़ी इंद्री ब्रेल राही पढ़न ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। Braille is used to aim at study. Which among the following senses is used to study through Braille? A. Vision यानी कि दृष्टि, B. सूंघना स्मेल, C. सुनना hearing and D है जी स्पर्श टच। तो A है जी स्पर्श। ठीक है। ब्रेल
ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੈਡ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ए फ्राइड, बी रॉस ने किया, सी रूसो ने किया ते डी है जी मन ने किया। यानी कि बच्चे का जिहड़ा मन है वो अध्यापक की एक पाठ पुस्तक की तरह, तो इसका राइट आंसर जो है जी सी रूसो ने किया। ठीक है। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, व्यक्ति ਅਤੇ समाज के भले के खेत्र में रुचि रखने वाले मनोविग्यानिक अध्यापक माता पिता ਅਤੇ समाज कार्यकर्ता भी बाल विकास के अध्ययन ਨੂੰ महत्व देन लगते हैं। किसका कथन है? साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स, social workers who take an interest in the welfare of individuals and society also start giving importance to the study of child development. Who said that? A गेट्स, बी क्रो, सी पील या डी है जी ड्रॉक। ठीक है। तो ये फिर इसका की आंसर आऊगा? क्रो ने यह कहा हैगा कि व्यक्ति और समाज के भले के खेत्र में रुचि रखने वाले मनोविग्यानिक अध्यापक माता पिता समाजकर्ता भी बाल विकास के अध्ययन को महत्व देन लग गए। यानी कि अज के टाइम में ये चीज़ों के इंपोर्टेंस देनी शुरू करती है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के क्वेश्चन जोड़े कि देखने को मिल सकते, इसलिए वीडियो जी की इंपोर्टेंट आ। और इस दे नाल ही अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगती है तो वीडियो नूं प्लीज़ लाइक जरूर कराया करो, कॉमेंट्स करना ना भुल्लिओ। तो हुण तक जिन्ने भी स्टूडेंट जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ जरूर चैनल नूं सबसक्राइब कर। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, किस दे अनुसार बच्चे का दिमाग कोरा कागज हुंदा है जो चाहे लिख सकते हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है। द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज ए ब्लैंक पेपर, we can write what we want. Who said? A John Locke, B Pluto, C Watson, D Mann। तो इसका राइट आंसर है जी जॉन लॉक। ठीक है। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, विकास दियां सारियां अवस्थावां विच बच्चों दियां प्रतिक्रियावां विशेष बनन तो पहला साधारण किस्म दियां हुंदियां हन। ये किसदा कथन है? All activities of the child in all developmental stages are journal before becoming specific। किहदे बारे गल कीती गई है? जर्नल ते स्पैसीफिक की गल की गई है। Who said? इसलिए जिहड़ा क्वेश्चन आ इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि आप कई सारे टॉपिक्स के CD विच जर्नल स्पैसीफिक वर्गे वर्ड ते टॉपिक कई देखिए है ना कि बच्चा जड़ा कि किस तरीके ना सीधा जर्नल टू स्पैसीफिक जाता, स्पैसीफिक टू जर्नल है ना। तो इस तरीके के ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन खास बन जाते हैं। तो इसलिए अज की वीडियो के आप ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हुण आप इहदी ऑप्शन देखांगे जी भी ये किसने कहा हैगा। ए गैरिसन, बी स्वीटनेस, ते सी है जी हरलॉक ने किया, या डी है जी कैसल ने किया हैगा। तो इसका राइट आंसर है जी हरलोक ने यह चीज़ कही है कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड इन ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस आर द जर्नल बिफोर बिकमिंग स्पेसिफिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का सिद्धांत दिता है। द मैचुरिनिस्ट थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कैसल, बी फ्राइड, सी जेम्स, डी बंडूरा। तो इसका राइट आंसर है जी गैसल। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा व्यवहारवादी नहीं है? अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट बिहेवियरिस्ट? ए थॉर्नडाइक, बी टॉलमैन, सी स्किनर, डी है जी फ्राइड। तो इसका राइट आंसर आऊगा जी फ्राइड। ठीक है, जो कि है बिहेवियरिस्ट नहीं हैगा। नैक्सट क्वेश्चन है, पिता पुरखी दे गुणा दे हस्तांतर सिद्धांत नूं कीता। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फादर्स क्वालिटीज वॉज प्रपाउंडेड बाय। ए डार्विन, बी मैंडल, सी रूसो, डी लॉक। तो इसका राइट आंसर है जी मैंडल। ठीक है, मैंडल द्वारा की किया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फादर क्वालिटीज वॉज। ठीक है, जाने कि ये किहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन हैगा? हैरिडिटी दे टॉपिक दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन।
क्लीयर। तो इस तरीके नाल असीं कह सकते हैं कि कुछ इहो ਜਿਹੇ साइकोलॉजिस्ट भी हैगे आ जिन्हां ने सिर्फ स्टेटमेंट्स दित्तियां हैगियां किसी टॉपिक्स के उत्ते आधारित, ठीक है। तो असीं पूरा ऐ क्लीयर नहीं कह सकते भी आपां सिंगल एक टॉपिक दे विचों कोई स्टेटमेंट बेस्ड तुहानूं MCQs मिल जाणगे, बट कई जो साइकोलॉजिस्ट हैगे जिन्हां ने खुद दीयां थ्योरीज नहीं दित्तियां बट उन्हां वल्लों कईयां स्टेटमेंट दे बारे डिस्कस करना जरूर बनता हैगा, क्योंकि इत्थों क्वेश्चन जिहड़े की आ एग्जाम दे विच आ सकदे आ। इसलिए जिहड़ा कि हैरिडिटी दे टॉपिक दे विचों एक स्टेटमेंट सी जो मैंडल द्वारा कही गई सी कि द प्रिंसीपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फादर्स क्वालिटी वॉज, किसने क्या हैगा, पिता पुरखी के गुणों का हस्तांतर का सिद्धांत किसने दिता, तो वह मैंडल। क्लीयर जी। नैक्सट क्वेश्चन है समाजीकरण समाज के नियम अनुसार सीखण की प्रक्रिया है, ये कथन किसदा है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसैस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी, हू सैड। तो यह भी क्वेश्चन जोड़ा कि एक इंपॉर्टेंट मनाया जाता है, क्योंकि इस दे किया गया है समाजीकरण के समाज के नियमों अनुसार सीखण की एक प्रक्रिया बारे दस्या गया। तो ये किसने किया, ए जॉनसन, बी प्रोफैसर फैडब्यून ग्रीन, सी फिशर ने किया, या डी है जी हैंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिर की बनता है, फिशर ने जी ये गल कही है कि सोशलाइजेशन जी प्रोसैस हैगी वो साडी लर्निंग अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ सोसाइटी। क्लीयर। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, माइंड इन सोसाइटी किताब का लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड ऑफ सोसाइटी। ए पियाजे, बी कोलबर्ग, सी वैगोस्की, डी बंडूरा। तो इसका राइट आंसर है जी वैगोस्की। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, किहड़े चिंतक ने यह दावा किया है कि वह व्यक्ति को उसदियां प्रवृत्तियां, योग्यतावां, नस्ल, सभ्याचार आदि दे ध्यान दिते बिना अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बनाने लई शख्सियत कर सकता है। Who strongly claim that he can train an individual to be anything he wanted, irrespective of his her tendencies and abilities, race and culture। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने किया है, किहड़े चिंतक ने दावा किया है कि व्यक्ति दी प्रवृत्तियां, योग्यतावां, नस्ल, सभ्याचार आदि दे ध्यान दिते बिना अपनी इच्छा अनुसार असीं उसनूं कुछ भी शख्सियत करके बना सकते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन देख लेने हैं जी अरिक्सन, बी वॉटसन, सी फ्राइड ने किया, या डी है जी बंडूरा। तो इसका राइट आंसर है जी वॉटसन। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, किसने ये मन्निया है कि सीखना विकास का टूल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, कि सीखना विकास का टूल है, किसने किया है। हु प्रपोज्ड दैट लर्निंग इज द टूल इन द डेवलपमेंट। ए पियाजे, बी स्किनर, सी वैगोस्की, डी फ्राइड। तो इसका राइट आंसर है जी वैगोस्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैगोस्की की कहते हैं कि सीखना विकास का टूल है, लर्निंग इज अ टूल इन डेवलपमेंट। उस तो बाद आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन, भाषा विज्ञानिक सैखेपिक परिकल्पना का सर्जक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय। किसने दिता है सिद्धांत। ए चोमेस्की, बी फ्राइड, सी बेंजामिन ली वॉल्फ ने किया, या डी है जी स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर है जी बेंजामिन ली वॉल्फ। ठीक है, लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय, किसने दी हैगी बेंजामिन ली वॉल्फ। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन, डैश निर्माणकारी ढांचे का सर्जक है, इज द प्रपोनेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बंडूरा, बी ब्रूनर, सी पियाजे, डी जंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क तो ये किसने किया, आपां नूं सब नूं पता हैगा। तो इसका राइट आंसर है जी पियाजे, क्योंकि पियाजे कौन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट सी, जिहड़ा कहंदा सी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन जो कि अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान अनुसार वातावरण में वो सारे बाहरले कार्य किए जाते हैं जिन्हां दे समय तो प्रभाव किया है। अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फंक्शंस विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग। ए रॉस, बी टॉलमैन, सी वुडवर्थ एंड मार्कविस, एंड डी है जी वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर है जी वुडवर्थ एंड द मार्क्स। आई होप तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी होगी। मेरी इस वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।